संगठन ने मजबूत કરવા અભિયાન અંતર્ગત અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસના જૂનાગઢ જિલ્લાના પંચેશ્વરની મેથડથી નિષ્પક્ષ ભાવે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખની નિમણૂકની કામગીરી કરવા અંગે ઓબ્ઝર્વર અને રાજસ્થાનના પૂર્વ ધારાસભ્ય ધીરજ ગજ્જર સાહેબ તેમજ પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ઓબ્ઝર્વર પુંજાભાઈ વંશ અને ઉના પૂર્વ ધારાસભ્ય તેમજ ઓબ્ઝર્વર ઇન્દ્રલીનભાઈ રાજ્યગુરુ તેમજ રાજકોટના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ઓબ્ઝર્વર ભરતભાઈ મકવાણા સાહેબ, આણંદ પૂર્વ ધારાસભ્ય ઓબ્ઝર્વર પ્રવીણભાઈ રાઠોડ સાહેબ તેમજ ભાવનગર પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ ગીરાભાઈ જોટવા સાહેબ તેમજ જિલ્લા પંચાયતના વિરોધ પક્ષના નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય અમિતભાઈ ધુળા, પૂર્વ ધારાસભ્ય ભીખાભાઈ જોશી, પૂર્વ ધારાસભ્ય બાબુભાઈ વાજાદ, પૂર્વ ધારાસભ્ય પરવેશભાઈ ચાવડા આ ઉપરાંત જિલ્લાના વિરોધ પક્ષના નેતા અમિતભાઈ ધુળા સહિતના જિલ્લાના દરેક માજી ધારાસભ્ય, પ્રદેશ ડેલિગેટો, દરેક તાલુકા શહેરના પ્રમુખો વગેરે આ જિલ્લાના પ્રમુખ અને આગેવાનો કાર્યકર્તા જૂનાગઢના સામાજિક આગળની કોંગ્રેસના વિચારધારા સાથે હાજર રહેલ અને જૂનાગઢ જિલ્લાના દરેક તાલુકાના કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને શહેર પ્રમુખનો મહેમાનો ભર્યું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. हार्दिक स्वागत है। आ तके पीसीसी कक्षाए जे आपणा प्रभारी निमाया सेवा उनाना पूर्व धारासभ्य आदरणीय पूजाभाई, आपणा गुजरात कांग्रेसना उपाध्यक्ष आदरणीय हीराभाई, सेवादळना प्रमुख बेन श्री प्रगतिबेन, जिल्ला कांग्रेसना अध्यक्ष भाई श्री भरतभाई, अमितभाई, आप सर्वेनु भरतभाई, माजी धारासभ्य श्री परवेशभाई, विविध सेलना जे आपणा प्रतिनिधिओ जिल्लाना बेठा छे, आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रमना बीजा दिवसनी शरूआत आपणे प्रेस कॉन्फरन्सनी छे, पछी 2 वाग्यानो समय आपणे प्रमुखोने सांभळवाना छे, એટલે હું વિનંતી जिला संगठन सृजन अभियान अंतर्गत आज की अपने वार्ता में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आदरणीय धीरज गुज्जर जी और हमारे पीसीसी अध्यक्ष भाई भरतभाई मकवाना जी, भाई राठौर जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भरत भाई, सोमनाथ से विधायक सेवादल के अध्यक्ष पूर्व विधायक भरत भाई, वर्किंग प्रेसिडेंट भाई श्री अमित जी, प्रेसिडेंट भाई श्री मनोज भाई और सब मीडिया आज की प्रेस वार्ता में राहुल गांधी जी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाया। वो पायलट प्रोजेक्ट समग्र देश में गुजरात से शुरू किया है। वो अंतर्गत आज हमारे गीत में हमारे जूनागढ़ ग्रामीण के जो प्रभारी वो धीरज गुज्जर जी इस प्रेस वार्ता को संबोधन करेंगे और संगठन के पक्ष में बात रखेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और जूनागढ़ जिले में आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के बाद
आदरणीय धीरज जी आपके समक्ष करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ भाई श्री भरत નેતૃત્વના નવા સંચાર માટે પુનર્ગઠન પણ જરૂરી છે. આ એક પ્રક્રિયાનો ભાગ છે. એ પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે જે પહેલા વિરોધી કોંગ્રેસની સંગઠનો રીતે આગળ વધાર્યું છે અને જેમાં નવા નેતૃત્વની શોધ, જેને આપણે ટેલેન્ટ પણ કહી શકીએ, એ અને નવા નેતૃત્વને આગળ વધારવાની પ્રક્રિયા અમે શરૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એના ભાગરૂપે આજે અમે સૌ આપણા સમક્ષ આવ્યા છીએ. ધીરજજી અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મંત્રી છે, રાજસ્થાનના સિનિયર નેતા છે અને વિધાનસભાના સભ્ય પણ ત્યાં રહી ચૂકેલા છે. ત્યાંના વિવિધ બોર્ડ કોર્પોરેશન્સમાં પણ એ અધ્યક્ષ તરીકે, ચેરમેન તરીકે ફરજો આપી બધા બજાવી ચૂકેલા છે. અહીંયા બેઠેલા સૌ સક્ષમ લોકો છે. વિમલભાઈ જેવા યુવાન અને આગળ પડતા અને આગળ વધી રહેલા નેતા છે. બેન પ્રગતિબેન જેવા છે કે જે પોતે વિમલભાઈની જેમ જ આગળ વધી રહ્યા છે. અમિતભાઈ બેઠા છે. સૌ જેનાથી પક્ષનો સામાન્યમાં સામાન્ય કાર્યક્રમ ધીરજજીને બધી વાત પોતાની કહી શકે અને એમાં અમે પણ ઇન્વોલ્વ ના થઈએ કે ડાયરેક્ટ જ મળી શકે. એટલે આપ સૌને અત્યારે આવકારું છું. મુખ્ય વાત જે છે કે આપણે કહી, હવે ધીરજજી આપની જોડે વાત કરશે. આપણે કોઈને તો ધીરજજી આપ आज संगठन सृजन अभियान के तहत महात्मा गांधी जी की और सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी के प्रदेश इस गुजरात से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत करी संगठन सृजन अभियान की, जिसके अंदर जिलाध्यक्ष का निर्णय दिल्ली से नहीं, अहमदाबाद से नहीं, बल्कि जूनागढ़ की और जिस जिले का जिलाध्यक्ष बनेगा पार्टी का, उस जिले की धरती से कार्यकर्ताओं की जाजम पर बैठकर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की राय लेके उनकी सम्मति से निर्णय करेंगे कि उस जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश से कांग्रेस पार्टी ने 42 लोगों को अलग अलग जिलों के अंदर, जिनको संगठन में काम करने का अनुभव है, जिनको सरकार में काम करने का अनुभव है, जिनके दिल के अंदर कांग्रेस बसती है, राहुल जी से प्यार करते हैं, ऐसे सभी लोगों को हर जिले के अंदर प्रभारी लगाया। उसके अंदर भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, उसके अंदर कई प्रदेशों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए लोग भी हैं, वर्तमान में कई राज्यों के प्रभारी और महासचिव हैं और राष्ट्रीय सचिव और कई सांसदों को भी एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और ये स्पष्ट निर्देश है कि बिना तेरा और मेरा किए हुए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे, जिले के सभी कांग्रेस को बुलाएं, उनकी राय जाने और उनसे एक बार पूछें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकता है और जो रत्ती भर भी किसी और संगठन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। गुजरात के अंदर 30 साल के आसपास हमारे लगभग हो गए, हमारी सरकार यहाँ पर नहीं बनी, इसलिए प्रयोग यहाँ से हमने किया है। जिलों के अंदर मैं जूनागढ़ में आया हूँ, मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी व्यक्तियों से जो कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हैं, कांग्रेस के समर्थन में है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए आगामी 3 दिनों तक मैं जूनागढ़ के अंदर उपलब्ध हूँ। हर विधानसभा के मुख्यालय पर मैं खुद जाऊंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और उनसे एक ही बात पूछूंगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आपके सेनापति की जिम्मेदारी देकर राहुल गांधी जी इस जूनागढ़ के अंदर जिले का अध्यक्ष बनाकर भेजे, ताकि वो आपकी लड़ाई को लड़ सके, आपको एक परिवार की तरह साथ रख सके। और मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल द्वारा संगठन सृजन अभियान में इतनी पारदर्शिता के साथ ऐसा निर्णय किया जाना एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। आने वाले समय में इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष। इसलिए जो मजबूत व्यक्ति होगा, जो पार्टी का वफादार होगा, जो जवाबदेह और जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसको संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी चयन करेगी और जिलाध्यक्ष का पद उसको देगी। मैं इस प्रक्रिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज हम लोग जूनागढ़ के अंदर जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं पूरे जिले के, उन सब पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनसे एक सामूहिक बैठक के बाद में व्यक्तिगत बैठक करूंगा। उस व्यक्तिगत बैठक के अंदर उनसे पूछा जाएगा कि आपके संगठन के मजबूत लोग कौन है, कौन आपकी पार्टी के वफादार है, कौन हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो दिन में कांग्रेस और रात के अंदर बीजेपी के अंदर चले जाते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जिनको जिम्मेदारी देने पर संगठन हमारा मजबूत होगा। इन तमाम बातों के बाद में कल 2 विधानसभाओं का, परसों 2 विधानसभाओं का प्रोग्राम है और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ और रुककर कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चीज को हर व्यक्ति तक पहुंचे। किसी को सूचना मिली हो
माध्यम से उसको मैं न्योता देना चाहता हूँ कि आइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के इस अभियान के अंदर भागीदार बनिए और अपनी राय हमारे को दीजिए। इसके साथ ही हम लोगों ने कल भी आपके जूनागढ़ के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने के बाद में जो पहलगांव के अंदर कायराना हरकत और बर्बर आतंकी हमले के अंदर इस देश के हमारे भाई कह सकते हैं, भारत माँ के बेटे कह सकते हैं, जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च कांग्रेस पार्टी ने निकाला और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको शहीद का दर्जा मिले, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ भारत सरकार की जो गंभीर चूक हुई है, क्योंकि ये आतंकी हमला हुआ इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन आतंकी हमला जब हुआ तब सुरक्षा व्यवस्थाओं को, सुरक्षा एजेंसियों को खबर क्यों नहीं थी, मौके पर वहां पर उपस्थित क्यों नहीं था। घटना होने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक, जैसा कि एक मृतक के परिवारजनों ने बताया कि 1-1.5 घंटे तक वो पहुंचा नहीं, तो इन गंभीर चूक के ऊपर भी जिम्मेदारी तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मजबूत शब्दों में कहा है कि भारत सरकार के साथ जो भी वो पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने गंभीरता में चूक करी है, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों ने चूक करी है, इसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसके ऊपर भी कांग्रेस कार्य समिति ने सवाल उठाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आज दुख में है, गुस्से में है, सदमे में है और कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता देश के साथ खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, क्योंकि आपके गुजरात से निकले हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला हो, अपने राजनीतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जिस तरह ईडी, सीआईडी, सीबीआई का उपयोग करके विपक्षी दलों के ऊपर दबाव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनको इस बात से बचना चाहिए। और त्याग की मूर्ति सोनिया गांधी जी तक को नेशनल हेराल्ड के ऐसे तथाकथित झूठे मामले के अंदर संलिप्त करने की जो प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इनकी ईंट से ईंट बजा देगी, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर अवसर नहीं देगी कि वो लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दामन को दागदार कर सके। यही बात मुझे आपसे कहना बता देंगे, क्योंकि जीवन में हम आपके बीच में वापस आएंगे तो आपके हमारे बीच में रिश्ते बने रहेंगे। जी सर, आपका सुनना कौन सी दिव्यांग जी मैम। भार्गवी जोशी, आज तक इंटरनेशनल। बैठे जी सर। देखिए, पार्टी जो लोग बदलते हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब हमें जवाबदार, जिम्मेदार और वफादार व्यक्तियों की खोज है जो पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए हों। और जहां आपने कहा कांग्रेस देश के अंदर कमजोर क्यों होती जा रही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, चुनाव के अंदर जीतने का जो हमारा प्रदर्शन है वो पिछले कुछ सालों बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जब यूपीए 2, यूपीए 1 की सरकार थी, हमने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों का, प्रशासन का दुरुपयोग करके, आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग करके, जो सुरक्षा एजेंसियां, ईडी, सीआईडी, सीबीआई संस्थाएं, इनका दुरुपयोग करके हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नाजायज परेशान करने का काम नहीं किया। लेकिन चुनाव आने के बाद में जब देश के अंदर चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल उठ जाए, खुद राहुल जी सबूतों के साथ चुनाव आयोग को ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने व्यस्त वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोट वहां पर डल गए। मतदाता सूचियों के अंदर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर लाखों का अंतर आ गया। तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो सवाल इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि सिर्फ ये जो इस देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं वो फेयर नहीं हो रहे हैं, इसी कारण कहीं ना कहीं हम लोग मात खाते जा रहे हैं। दूसरा, इस देश के अंदर जिस तरह वोटों का दुरुपयोग करने के लिए कांग्रेस बात करती है सबका साथ और सबका विकास के अंदर, 36 को उनको एक साथ रखकर चलने के अंदर, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को लाने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, सिख और ईसाइयों को लड़ाने का काम करती है, और जब इनको लगता है ये दाव उनका सफल नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये जातियों को लड़ने का काम करती है। जैसा कि आपने गुजरात के अंदर देखा होगा कि आरक्षण के टाइम में किस तरह से उन्होंने ये पूरे देश के अंदर लोगों को लड़ाते हैं। जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसके ऊपर ये लोग चल के इस देश के अंदर फूट डाल के राज
काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हो कांग्रेस का जो डीएनए है वो इस देश का डीएनए है, और जिन्होंने पहले इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई वो आर्थिक गुलामी से भी इस देश को आजादी दिलाएगी और इस देश के अंदर वापस तिरंगा फहराएंगे। बेसिक अंतर हमारे में यही है, हम उनमें जो बेसिक अंतर बताना चाहता हूँ, हम महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, भीमराव जी अम्बेडकर की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं। हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को माँ भारती के बेटे के रूप में देखते हैं। हम किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के रूप में नहीं देखते। हम लोग सबको भारत माँ के बेटे के रूप में देखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के रूप में देखते हैं। हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, इनके लिए सत्ता जो है वो अधिकार करने का माध्यम है, लाभ कमाने का माध्यम है। इसलिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि हमारी विचारधारा आज जरूर कुछ समय के लिए कमजोर हुई है, लेकिन देश के लोगों को समझ में आएगी कि कांग्रेस बात करती है रोजी रोटी, कपड़े, मकान और विकास की, और भारतीय जनता बात करती है हिंदू और मुसलमान की। हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाने से इस देश के अंदर गरीब का पेट नहीं भर सकता। इस देश के अंदर गरीब का पेट तब भरेगा जब इस देश के किसान को स्वामी रंगनाथन का जो उन्होंने जो घोषणाएं करी थी वो घोषणाएं भारत सरकार किसी के क्षेत्र के अंदर लागू करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को विकास होगा। और यही लड़ाई राहुल गांधी जी की है। आज जिस तरह से मजबूती से राहुल गांधी जी इस देश के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ, जिस तरह से अंबानी और अडानी को इस देश के अंदर राज करने की पूरी ताकत और उनके हिसाब से नीतियां बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो दिन दूर नहीं है। अगर इस देश के अंदर बीजेपी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी तब लोगों को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल देगी। और कांग्रेस बात करती है लोगों को, छोटे लोगों को व्यापार दिलाने की, उद्योग धंधा दिलाने की, रोजगार दिलाने की और पैसा दिलाने की। ये हमारे उनकी जो बेसिक अंतर है। हमारी विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती है। हमारी विचारधारा वापस जोर पकड़ेगी और देश के अंदर कांग्रेस तिरंगा झंडा फहराकर लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेगी। क्योंकि इससे क्या होता है निश्चित रूप से ये बात आम आदमी पार्टी को समझनी चाहिए। एक मिनट में वो क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगी। पहला तो मैं आपको कहूँ कि इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन आज भी है, और इंडिया गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के साथ शामिल होकर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जगह संविधान को बचाने की और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो परिणाम आया वो सामूहिक नेतृत्व का परिणाम था। ये मैं जरूर कहूँगा कि आपके माध्यम से कि आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। उनके प्रदेश की इकाइयाँ कई जगह, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा गठबंधन है, लेकिन कई जगह प्रादेशिक रूप के अंदर जब चुनाव होते हैं छोटे, तब सीटों के मामले में या प्रादेशिक इकाइयों के मामले के अंदर जब गठबंधन में दरार पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसका बीजेपी को फायदा होता है। तो मैं आम आदमी पार्टी से आग्रह करूंगा कि उनको बड़े लक्ष्य को देखकर छोटा लक्ष्य छोड़ना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर उनको उपचुनाव के अंदर मदद करनी चाहिए। जहाँ तक आपने विशाल चुनाव के लिए कहा, उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के हमारे इंद्रनील विजय जी जो पूर्व विधायक हैं राजकोट से, वो आकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक बार बैठक ले चुके हैं। मैं खुद वहाँ पर कल जा रहा हूँ, वहाँ हमने वहाँ पर बैठक का आयोजन किया है। और कांग्रेस इस उपचुनाव को हमारे प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह जी गोहिल के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सामूहिक नेतृत्व के रूप में फैसला करके वहाँ पर अच्छे उम्मीदवार को उतारेंगे और हम लोग इस गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो अभी राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूरी है वो जीत है, और जो स्थानीय समीकरण है उन समीकरणों के आधार पर हम लोग उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। ये प्रादेशिक नेतृत्व का काम है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे यहाँ के जिले के नेता हैं, ये बैठकर सामूहिक नेतृत्व करेंगे। क्योंकि पहली बार हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब दिल्ली दरबार से फैसले नहीं होंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं की जायम के ऊपर फैसले होंगे, कार्यकर्ताओं की राय से फैसले होंगे, स्थानीय नेताओं के द्वारा फैसले होंगे। फैसले भी इनके होंगे, निर्णय भी इनका होगा, उसको लागू हम करेंगे। जवाबदेही इनको सुनिश्चित की जाएगी। जो अच्छा काम करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो इस काम में कोताही बरतेगा उसको प्यार से साइड में कर दिया जाएगा। दूसरा जो अभी तो परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। नहीं ऐसे जो भी इस देश के अंदर संविधान की रक्षा की लड़ाई के अंदर इस देश को आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए और इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को बांटने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, उससे देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहता है। कांग्रेस दोनों हाथ खोल के उनका स्वागत करेगी और कांग्रेस पार्टी का चूंकि एक उपचुनाव है, तो इस उपचुनाव के अंदर जो भी निर्णय होना है वो
प्रदेश इकाई के स्तर पर होना है। और चूंकि गुजरात के हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी हैं, वो हमारे राष्ट्रीय सचिव साथी जो है वहाँ पर हो, मैं यहाँ पर संगठन सृजन अभियान के लिए आया हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ कि संगठन सृजन अभियान पूर्णतया पारदर्शिता के साथ सबकी राय लेकर, सबको विश्वास में लेकर कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। और जो हमारा जिले का हमारा अध्यक्ष, चाहे जो वर्तमान अध्यक्ष है ये रिपीट हो, चाहे नए अध्यक्ष बने, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो फैसला ऐसा होगा कि हमारा जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष है वो सेनापति के रूप में कांग्रेस के सब नेताओं को साथ लेकर एक विजय अभियान चला सके। वो ताकत कम लग रही है। इस देश के अंदर महात्मा गांधी जी के बाद दूसरे नेता राहुल गांधी जी हैं। उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, स्थानिक लेवल पर जिला प्रमुख या शहर प्रमुख जो होते तो जिला हैं, प्रमुख- कार्यकर्ता में तो वो ताकत है, पर जो उसके लीडर होते हैं, स्थानिक लीडर, उसमें वो ताकत कम दिखती है, इसकी वजह से रिजल्ट कम आ रहे हैं। तो अब आपको लड़ने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला और मजबूती से सीना तान के बीजेपी से लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति दिखेगा। देखिए रणनीति यही है, आने वाला एक साल 365 दिन कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से हमारी जिला इकाइयों का गठन, शहर इकाइयों का गठन, ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर गठन, तालुका कमेटियों का गठन, बूथ कमेटियों का गठन करने के साथ साथ छोटे छोटे जो समूह हैं उन समूह के साथ, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ, अन्य जो संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, एनजीओ टाइप के लोग हैं, इनके साथ संपर्क बनाने के साथ साथ हमारी पार्टी संपर्क का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का काम करेगी और कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष, इन तीनों को मजबूत करते हुए कांग्रेस पार्टी जमीन पे आपको लड़ते हुए दिखेगी। आने वाले 2.5 साल हमारे लिए करो या मरो के साल है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इस गुजरात के चुनाव को लड़ेगी और इसको सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा देश इनके साथ खड़ा होकर लड़ेगा। इस गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना पड़ेगा। आयात और निर्यात करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो आया टाइम पे, वो आया राम और गया राम। स्थानिक के जो आयात और निर्यात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेने का नाम, बेचने का नाम, लोगों को डराने का नाम, डराकर अपनी पार्टी में शामिल करने का काम बीजेपी का काम है। जिसके दिल में कांग्रेस होगी और जिसके लिए कार्यकर्ता कहेंगे कांग्रेस पार्टी उसी को टिकट देगी। क्या मुद्दे मत लेकर जाओगे आप? जिस तरह से देश के अंदर संविधान की रक्षा करनी है, इस गुजरात को और पूरे देश को आर्थिक आज़ादी और आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने की बात करनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जिस तरह से आपस में लड़ा कर इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, उसको एक रखने का काम है। और इसके साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हमारे जूनागढ़ के होंगे, विसावदर विधानसभा के होंगे, जो विकास के मुद्दे होंगे, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। धन्यवाद। ओके सर। संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह तय किया कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का निर्णय और प्रदेश के पदाधिकारियों का निर्णय दिल्ली और अहमदाबाद में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी जाजम के ऊपर होना चाहिए। उसी कड़ी के तहत संगठन सृजन अभियान का ये पूरा 1 वर्ष का कार्यक्रम हमारा तय हुआ है और उसके तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक एक नेता को पार्टी की तरफ से गुजरात प्रदेश से बाहर से यहाँ पर भेज के उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया है कि एक एक कार्यकर्ताओं से मिलो, उनकी बात सुनो और उनको संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस में जिले के अध्यक्ष का चयन करो। इसी कड़ी में मैं आज जूनागढ़ यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज दिन भर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और आगामी 2 दिनों के अंदर चारों विधानसभाओं के अंदर हम लोग दौरा करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और उनकी राय के मुताबिक कांग्रेस के जिला संगठन का फैसला यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो आतंकी कार्रवाई, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई, कायराना हमला हुआ है जिसके अंदर हमारे भारत माँ के बेटों को शहीद होना पड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कैंडल लाइट जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर सरकार के साथ खड़ी हुई है, वो आतंकियों से बदला ले, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने इस सुरक्षा के अंदर गंभीर चूक की है उनकी जिम्मेदारी तय होकर देश के सामने उनके नाम को लाया जाए और आइंदा ऐसा ना हो इसका सरकार प्रयास करे। साथ साथ ही जिस तरह से ईडी, सीआईडी, सीबीआई का प्रयोग करके विपक्षी पार्टियों को डराने का, दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनको इस पर रोक लगानी चाहिए। इस लोकतंत्र के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी और कांग्रेस इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के लिए
जूनागढ़ जिले की विसावदर विधानसभा के अंदर उपचुनाव है। उस उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। हमारी पार्टी के नेताओं ने स्थानीय स्तर पर दौरे चालू कर दिए हैं। हम लोगों ने वहाँ पर पार्टी की बैठक रखी है। कल परसों वहाँ पर मैं जाऊँगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और छोटे छोटे वहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। लोगों को बुलाया जाएगा, जो NGO हैं उनसे मिला जाएगा, प्रबुद्ध गण नागरिकों से मिला जाएगा, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से मिला जाएगा और जो व्यक्ति जनता की आवाज़ बनने में सक्षम होगा ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारेगी और इस उपचुनाव के अंदर चुनाव जीतने का काम रणनीतिपूर्वक हम लोग करेंगे। ओके।